खेत जमांडे ओ सूरमा, खेत जमांडे ओ सूरमा, खेत जमांडे ओ सूरमा, सूरमा सूरमा, खेत जमांडे ओ सूरमा। अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ। बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद, बहुत बहुत आप जी का शुकराना। एक बार फिर आप जी ਨੂੰ ਜੀਵਾਇਆ ਨੂੰ। आप जी ने एक क्लिप देखी, मेरा सिर जावे ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ 0121667450 मैं आप जी ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। तो इस करके ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਫਿਰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ 8 ਸਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਰੇਆਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੋਹਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ, ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀੜ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
माता जी और भैन जी जिहड़े सन सत्कारयोग तारू सिंह जी दे वो लंगर तैयार करिया करते सन। तारू सिंह जी लंगर उस जगह ते भी पहुंचाया के आया करते सन। आप जी का सरनेम संधू सी और उस नाते आप खेतीबाड़ी का काम करिया करते सो और खेतीबाड़ी दे विच आप जिन्नी भी सेवा दसवंध तो इलावा भी वो सारी दी सारी सिखां दे लेखे ही लाया करते सो। इत्थे एक गल अक्सर कही जाती है कि उस वक्त सिखां दा जंगलों के विच वासा सी। जे सिखां दा जंगलों के विच वासा सी तां भाई तारू सिंह जी अपने घर दे विच किवें रह रहे सन। असल दे विच सिखां नूं विद्रोही नज़र दे नाल देखिया जांदा सी, उस तरह ही ठीक उस तरह ही जिस तरह के पिछले 2 दहाकियां दे विच पंजाब दे विच वसण वाले सिखां नूं देखिया जांदा रहा। उन्हां दे घरां दे विचों कढ के सिख मारे गए, नौजवान मारे गए और कुछ सिख बार्डर पार करके दूसरे गुआढ़ी मुल्क दे विच भी चले गए, कुछ उस वक्त भी किते इधर उधर हो गए, लेकिन सारे सिख तां अपना घर नहीं छड्ड के गए ना। इस तरह ही जाहिर तौर उपर जुल्म दा बिल्कुल उही मंजर है जिस वक्त जालम सरकार सिखां उपर सरेआम जुल्म कर रही है, कदी सिखां दे मुल पाए जा रहे हैं। सिख दा कर्म की है, सिख दा फर्ज की है? सिख दा कर्म, सिख दा फर्ज। सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी लंगर छक रहे सन एक बारी और एक पीर आया, उसने सतगुरु को सवाल पूछा कि पातशाह तुसी मीरी और पीरी का संकल्प दिता है और देग तेग फतेह का तुसी नारा लाया। अज जय जवान जय किसान का जिहड़ा नारा मारिया जाता है ना, वो तो अज मारिया जाता है। ये जय जवान जय किसान ही है जिहड़ा सतगुरु जी ने देग तेग फतेह कहा सी। देग का मतलब की है? देग पैदा करने वाला किसान, और तेग का मतलब की है? सिपाही। तो जय जवान जय किसान का नारा मारने वाले अज बड़ा अपने नारे नूं चुक रहे हैं कि बड़ा खरे खूबसूरत नारा मारता है। सतगुरु देग तेग फतेह पहले ही कह गए सन किवें करनी। देग का मतलब देग पैदा करने वाला, भाव कणक पैदा करने वाला किसान, और तेग का मतलब सिपाही जिहड़ा जिन्हों जय जवान ते जय किसान कह रहे हैं। सतगुरु जी तुसीं मीरी पीरी का कॉन्सैप्ट दिता और देग तेग फतेह की गल की है। सतगुरु जी ये गल तो समझ लगती है कि देग सिख के घर दे विच सेवा हित होएगी। तेग किस वास्ते? हुण तेग का भी जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो सिख धर्म दे विच बड़ा क्लीयर है, बड़ा स्पष्ट है, पर आपां इत्थे गल कर रहे हैं देग दी। सिख दे घर वैसे भी कोई आ जाए भुखा, सिख दे घर देग हर वक्त तैयार है, क्योंकि सिख ने अपने घर जिहड़ी देग बनानी है वो गुरु का नाम लैके बनानी है। और साडी लंगर की एक परंपरा होया करती सी कि जिस वक्त लंगर तैयार किया जाता सी, पंथ प्रकाश दे विच इस परंपरा का पूरा खुलासा दिता गया है कि जिस वक्त लंगर तैयार किया जाता सी उस वक्त लंगर तैयार हो जाने तो बाद एक आवाज लगाई जाती सी, और उस आवाज दे विच की कहा जाता सी? देत आवाजा भूखा कोई आवो तैयार देग गुर होई। देत आवाजा भूखा कोई आवो तैयार देग गुर होई। आवाज लगाई जाती सी कि आ जाओ गुरु की देग तैयार हो गई है। हुण अगला प्रश्न करते हैं कि उस वक्त किम दुश्मन आवे, क्योंकि सिखां दा जंगलों के वासा है। जिवें कि मैं आप जी के चरणों में बेनती की है कि भाई तारू सिंह साहब जी सिखां नूं जंगलों के पहुंचा के आ रहे ने प्रशादा भोजन। हुण सवाल अगला किया गया कि उस वक्त किम दुश्मन आवे। उस वक्त जे दुश्मन आ जाए ताकि दुश्मन नूं लंगर छकाया जा सकता है। हुण देखना साडे धर्म की खूबसूरती की है। अज तां असीं अपने भरावां नूं मारन ते लगे हुए हैं ना, या एक दूजे कोल खोण ते लगे हुए हैं। उस वक्त किम दुश्मन आवे परम मित्र सम तै छकावे। उसनूं परम मित्र समझ के छकाया जाता सी। ये नहीं कि दुश्मन है ऐसी तैसी, इहनूं मैं लंगर क्यों दियां। परम मित्र सम। ते फिर अगला प्रश्न किया है, कहने कि दुश्मन इन्ना आ जाए, क्योंकि आवाज लगाई जा रही है ना, देत आवाजा भूखा कोई आवो तैयार देग गुर होई। जे दुश्मन इन्नी तादाद विच आ जाए कि लंगर घट हो जाए। हुण आपां अज भी कहने ना लंगर मस्ताना हो गया। मस्ताने का मतलब होंदा है कि इन्ना ज्यादा खा लिया कि मस्ती आ गई, क्योंकि वैसे भी जे प्रशादा भोजन ज्यादा छको ना ते मस्ती जी आ जाती, आवाजारी जी हो जाती है। हुण कहंदे उस वक्त कि दुश्मन आवे परम मित्र सम तै छकावे, पर उहदी तादाद इन्नी होवे कि जे बचे ही ना तो फिर अगला गल की बचे सो खा लेत हैं, नहीं तो लंगर मस्त बते हैं। जे बच गया तो खा लेंगे, नहीं तो कहेंगे लंगर मस्त है। यानी कि गुरु का लंगर पहला आवाज दे के छकाया जाता सी। परंपरा सी साडी। तो भाई साहब सत्कारयोग तारू सिंह साहब जी उस परंपरा नूं निभा रहे ने, कोई गुनाह नहीं कर रहे। और गुरसिख का की फर्ज है? सिख धर्म की खूबसूरती देखना। भाई तारू सिंह साहब जी केवल सिखां नूं भोजन प्रशादा नहीं पहुंचा रहे। मैं बेनती की सी
कि उस फकीर ने सवाल पूछा कि देग किहदे वास्ते है, तो सतगुरु कहते सिख दे घर जे कोई भुखा आ जाए, तो हुण सिख दे घर जे कोई भुखा आ जाए, हुण भुखा कौन? कि सिख ही भुखा सिख दे घर प्रसादा छक सकदा है? भुखे का मतलब कोई भी भुखा आ जाए। तो यह गल मैं क्यों की? क्योंकि जिहड़ी शिकायत की गई है ना हरभगत नारायणी वालों, उस शिकायत दे विच उसने कहा है कि यह सिख डाकुआं नूं भोजन पहुंच जाता है। लेकिन इतिहास इस गल का गवाह है। रहीम बख्श नाम का एक किरदार है, उस इतिहास के विच आप इतिहास पढ़ के देख लेना। यह गल मैं इस करके कह रहा कि भाई तारू सिंह साहब जी केवल सिखां का ही ध्यान नहीं रख रहे, वो सारी मनुखता का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि सिख धर्म मनुखता का धर्म है और इस मनुखता के धर्म को समझने के लिए बड़ी लोड़ है। और लोड़ इस करके है क्योंकि इन्ना वड्डा साडे पास कॉन्सैप्ट है जिन्हों आपां भाई कन्हैया जी का कॉन्सैप्ट कह सकते हैं। इन्ना वड्डा साडे कोल कॉन्सैप्ट है जिन्हों आपां तिलक जिंजू राखा प्रभ ताका, तिलक और जनेऊ दी रखिया करने वाले गुरु तेग बहादुर महाराज जी। इन्ना खूबसूरत कॉन्सैप्ट, उस कॉन्सैप्ट के पिछे गल की है, जो शरण आए तिस कंठ लाए ये बिरध स्वामी चंदा। हुण शरण कश्मीरी पंडित आए ने, सतगुरां ने यह विचार नहीं किया कि किस धर्म दे ने, और यह भी विचार नहीं किया कि इन्हां दा धर्म की है और की मैं इन्हां दा धर्म काहदे लई बचावां, क्योंकि मैं तो तिलक और जनेऊ दे नाल सहमति नहीं प्रगट कर सकदा। लेकिन गुरु ने कंठ लाया। कंठ लाने का मतलब यह है कि लोड़वंद की लोड़ की है, उस वक्त उसकी लोड़ उन्हां दा धर्म बचाउण दी है, तो सतगुरु ने उन्हां दा धर्म बचाया। मैं शॉर्ट दे विच गल कर रहा, इहनूं आपां बहुत एलोबरेट कर सकते हैं इस गल नूं। भाई कन्हैया जी की भी शिकायत हुई है कि भाई कन्हैया जिन्हां नूं असीं तीर मार के विन्हदे हां, भाई कन्हैया उन्हां नूं पानी पिआउंदा है। जिन्हां नूं तीर मार के असीं जख्मी करदे हां, भाई कन्हैया उन्हां दे जख्म उपर मरम लगा दिंदा। सब तो वड्डा गद्दार ते भाई कन्हैया। और अज भी खिमा करनी, जे भाई कन्हैया जी आ जाण तो अज भी कह दांगे जी RSS के बंदे ने। अज भी भाई कन्हैया जी आ जाण तो कह दांगे जी कांग्रेस के बंदे ने, क्योंकि अज भी असीं उस कॉन्सैप्ट नूं, उस धर्म नूं नहीं समझ सके जिस धर्म नूं साडे सतगुरु नानक सानूं समझाना चाहते हैं। तो भाई कन्हैया जी की भी शिकायत हुई है। मैं अज भी एक जगह के उत्ते गल कर रहा सी कि शिकायत उस वक्त भी हुई है, शिकायत अज भी हुंदियां ने, यानी कि शक उस वक्त भी किया जाता सी कि भाई कन्हैया ने। हुण सतगुरु ने शंका दूर करने के लिए भाई कन्हैया जी नूं सरेआम पुछया कि भाई कन्हैया जी सिंह शिकायत करते हैं। भाई कन्हैया जी कहने लगे जे सिंह शिकायत करते हैं तो ठीक ही करते होणगे, सिंहां दी शिकायत है। लेकिन शिकायत की है कि तुसीं पानी पिआया उन्हां नूं जिन्हां नूं सिंहां ने विन्निया तीर मार के, तुसीं मरम लगाई उन्हां नूं जिन्हां नूं सिंहां ने विन्निया तीर मार के, ये ठीक है? भाई कन्हैया जी कहने लगे ठीक है, क्योंकि यही तुहाडा हुक्म सी। सतगुरु कहने लगे मेरा हुक्म की सी, जरा इन्हां नूं दस दिओ। पातशाह तुहाडा हुक्म यह सी कि जख्मियां दे मरम लगाओ और प्यासियां दी प्यास बुझाओ। जिवें उस फकीर नूं सतगुरु ने कहा कि जे सिख दे घर कोई आ जाएगा, हुण कोई किस रूप दे विच आ जाए, कि गुरु कोलों रखिया लैण दे लई केवल हिंदू गए ने, गुरु कोलों रखिया लैण दे लई मुसलमान भी गए ने। वक्त दे हाकम नूरुद्दीन जहांगीर दा अपना सका बेटा खुसरो गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल गया, और गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पनाह दे विच जिन्नी देर वो रहा है, आप मैनूं इतिहास फरोल के दिखा देना, उन्नी देर तक कोई भी वक्त दा हाकम उस तक अप्रोच नहीं कर सकिया। एक बहुत लंबेरा इतिहास है। तो भाई कन्हैया जी ने उस वक्त कहा कि आप जी का हुक्म सी कि जख्मियां दे मरम लगाओ और प्यासियां दी प्यास बुझाओ। मैं वही किया, मैं प्यासियां दी प्यास बुझाई, मैं जख्मियां दे मरम लगाई, क्योंकि तुसी क्या सी प्यासियां दी प्यास बुझाओ। मेरा काम उस वक्त यह हो गया सी कि मैं प्यासियां दी प्यास देखी। प्यास किस जिस्म नूं लगी है देखना मेरा काम नहीं रह गया। प्यास हिंदू नूं लगी है, प्यास मुसलमान नूं लगी है, प्यास सिख नूं लगी है, देखना मेरा काम नहीं सी, क्योंकि तुसी क्या सी प्यासियां दी प्यास बुझाओ। तुसी क्या सीगा कि जख्मियां नूं मरम लगाओ। हुण जख्म किस जिस्म ते लगा यह देखना मेरा काम नहीं सी, क्योंकि मैं जख्म ही देखा, मैं जिस्म देखिया ही नहीं। जख्म जिसनों लगा सी मैं और आप इतिहास के विच देख लेना कि कोई आपनों ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी इतिहास के विच कि जिसने क्या होवे कि जिसनों भाई कन्हैया जी ने मरम लगाई या पानी पिया उसने मुड़ के उठ के सिखां उपर दोबारा वार किया होवे, क्योंकि सिख का मतलब की है, कर्म की है। फिर अगला सवाल यह पैदा होया कि सतगुरु सानू तुसी तीर दिते है, भाई कन्हैया जी नूं तुसी मशक दे दिती है पानी दी, भाई कन्हैया जी नूं तुसी दवाइयां दी डब्बी दे दिती है, सानू तीर देने वाला पावन हथ भी उही ने, भाई कन्हैया जी नूं दवाइयां दा डब्बा देने वाले मशक देने वाले हथ भी उही ने। सतगुरु रमज की है, बस यही धर्म है।
सतगुरु सानू तुसी तीर दिते काहदे लई? पातशाह कहने लगे कि ये सोचो तुसी, क्योंकि मैं तुहानू संत सिपाही बनाया, मैं तुहानू कल्ला सिपाही नहीं बनाया, मैं संत भी नाल बनाया। तुहानू संत होके सोचो कि सिपाही ने किस नू मारना है, और संत होके सोचोगे तो समझ लगेगी कि ना कोई दुश्मन दोखिया ना ही कोई बंदा। तो जब सिख का कोई दुश्मन है ही नहीं तो आप तीर किस उत्ते चलाना, आप कृपान काहदे लई रखी हुई है? ना कोई दुश्मन दोखिया ना ही कोई बंदा। सिख दा बैरी भी कोई नहीं है, ना दुश्मन है कोई, ना बैरी है। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। फिर सतगुरु तीर काहदे लई देते गए? सिख दा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन सिख दे लई यही उपदेश है, जब धारे को बैरी मीत तब लग निश्चल ना ही चीत। जब धारे को बैरी मीत, धार के भी नहीं चलना कि मेरा जी बहुत प्यारा मित्र है, ये जी दुश्मन नंबर मेरा 1 है। पातशाह कहते हैं ये भी धार के नहीं चलना। जब धारे को बैरी मीत, जब धार के चलेगा तब लग निश्चल ना ही चीत। समझ ली तेरा मन हजे निश्चल नहीं है, हजे स्थिर नहीं है, हजे निश्चिंत नहीं है, हजे शांत नहीं है। तो फिर सतगुरु सानू तीर क्यों दिते गए जे साडा कोई दुश्मन ही कोई नहीं है? सिख दा दुश्मन कोई नहीं, सिख है दुष्ट सोधक। जे दुष्ट सुधर गया तो फिर उसका जिस्म सिख खत्म नहीं करेगा। भाई कन्हैया जी ने जिन्होंने मरम लाई वो फिर दुष्ट नहीं रहा। तो जे दुष्ट नहीं संभल सकता, और क्योंकि यही प्रश्न साडे कोल पूछा जाता है कि जब गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सबर दी इम्तिहा दी तो की सबर का प्याला भर गया जो गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने कृपान चुक ली? जब गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने सबर की इम्तिहा दी, सबर का इंतहा तक इम्तिहान दिता तो की सबर का प्याला भर गया जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कृपान चुक ली? बस यही गल समझने वाली है। नहीं, सबर का प्याला सिख का कदी नहीं भरेगा, ना ही भरदा है। तो फिर होया कि पातशाह ने कहा कि जे सबर की भाषा या सबर की परिभाषा नहीं कोई समझ सकिया तो समझ लो इंसान नहीं, वो जानवर है। जानवर का इलाज केवल डंडा है। इस करके पातशाह ने कहा चुकार अजहमा हीलते दरगुजश्त हलाल बुरदन अस्त बशमशीर दस्त। तो यह मनुखता का एडा वड्डा धर्म है कि जिस दे विच यह विचार नहीं किया जाता कि मैं मदद किस दी कर रहा, मैं किस नूं भोजन छका रहा। यह गल मैं इस करके कही क्योंकि जी हर भगत नारायणी ने शिकायत की, उन्हें कहा कि सिख डाकुआं नूं भाई तारू जी भोजन पहुंचा रहे हैं। लेकिन भाई तारू जी की कह रहे हैं? भाई तारू जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं सिखा नूं नहीं, मैं सब नूं। और केवल भोजन ही नहीं पहुंचा रहा। तो मैं जिक्र कर रहा सी एक मुसलमान का जिसका नाम रहीम बख्श है। रहीम बख्श भाई तारू जी दे कोल आया है और भाई तारू जी नूं आके कहने लगा कि जिहड़ा पट्टी दा नवाब है ना, वो मेरी कन्या नूं चुक के ले गया, मेरी बेटी नूं चुक के ले गया है। तो फिर भाई तारू जी की केवल सिखा नूं मदद पहुंचा रहे ने? तो फिर भाई तारू जी ने की कहा कि भाई तारू जी ने कहा कि तू एक सिख नूं खबर सुनाई है, इस करके सिख जिहड़ा ना अपने गुरु नानक अगे अरदास करदा रोज सरबत दे भले दी। ते जे अज तू सिख नूं खबर सुनाई है ना कि तेरी कन्या चुकी गई है और वक्त दा हाकम पट्टी दा जिहड़ा हाकम है उसनूं वापस नहीं कर रहा, जिहड़ा गवर्नर है, तो सिख ने जदों सरबत दे भले दी अरदास करनी है, अरदास नानक के दर ते पहुंच जानी है। तो जिस वक्त सिखां नूं पता लगा सिख रहीम बख्श की कन्या नूं उस गवर्नर को पट्टी के गवर्नर को छुड़वा के भी लिया, इतिहास है। मैं ये गल इस करके कह रहा क्योंकि केवल सिखां की मदद नहीं कर रहे हो भाई तारू जी, पर शिकायत करने वाला कह रहा है कि भाई तारू जी डाकुआं नूं भोजन प्रसाद छका रहे हैं। हुण मैं इत्थे एक गल कर दिया कि जिहड़ा भगत हर भगत नारायणी सी ना, खिमा करनी, ये भी सिख ही सी। ये हंदल सन, हंदल हुंडल जिन्होंने आप अजकल कहने। ये गुरु अमरदास वक्त दे बड़े प्यारे सिख चले आ रहे सन और गुरु अमरदास महाराज जी ने इन्हां दे वड्डे वडेरियां नूं मसंद भी थापिया सी, मंजी भी दित्ती सी। लेकिन इन्हां दा एक बेटा सी बिधी चंद, वो नहीं जिहड़ा 6वें पातशाह वक्त, किते कंफ्यूज ना हो जाना क्योंकि अपना साडा फर्ज हुंदा जी एक मिनट च फोन करदे आ जी वो किदां कह दित्ता जी, ये होर सीगा। इसने कोई साखी लिख दी सी जिस दे विच, क्योंकि अज भी आपां जिद्दां कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं ना, साडे कई इतिहासकार किवें इतिहास नूं तरोड़ मरोड़ के लिख रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी तत्ती तवी दे बैठे ही नहीं, वो सीस कटिया ही नहीं जी, बाबा दीप सिंह जी का वो जिहड़े ने पंजा साहब का पंजा है ही नहीं, आ जिहड़े गुरुद्वारे ने जी इन्हां दा कोई इतिहास मुकता, उन्हां दे लई इन्ने ने शब्द वरते और उन्होंने असीं इतिहासकार मन बैठे हैं। इस तरह ही उन्हें भी किया सी ते ज़ाहिर तौर पर सिखां ने फिर उन्होंने भी ताड़िया सी। उस वक्त तो सिखां दे फिर ये वैरी हो गए सन। हुण इन्हां नूं नारायणी कहा ही तां जांदा सी क्योंकि सतगुरु गुरु अमरदास महाराज वक्त ये नारायण का सिमरन करया करते सन, परमात्मा का अकाल पुरख का, इस करके इन्हां दा नारायणी नाम हो गया सी। तो इन्हां दे खानदान चों चले आ रहा सी हर भगत।
जिसने गुरु साहिबां दे उस सिख दी भाई तारू जी की शिकायत की जकरिया खान दे अगे। जकरिया खान दे अगे शिकायत एक नहीं हुई, शिकायत कई गई ने, क्योंकि जाहिर तौर पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे ने जिन्हों का काम ही यह होंगे कि किसी ना किसी तरीके जैलस करनी। असल दे विच मैं आप जी नूं इत्थे एक गल बड़ी क्लीयर कर दिया स्पष्ट रूप दे विच कि अज दा मनुख दुखी पता क्यों है। मैं एक सवेरे प्रोग्राम देख रहा सी, उहदे विच बार बार पूछ रहा सीगा कि अज दा मनुख सुखी क्यों नहीं हो रहा, अज दा मनुख सुखी क्यों नहीं हो रहा। मैं कहा इहदा जवाब तो बड़ा आसान है कि अज दा मनुख सुखी इस करके नहीं हो रहा क्योंकि अज दा मनुख इन्ना स्वार्थी हो गया है कि उस नूं अपने सुख दे विचों सुख लैण दी जाच भुल गई है। वो दूसरे दे सुख नूं देख देख के आप दुखी हुंदा रहिंदा। वो इन्ना किद्दां चढ़ गया, उन्हें इन्नियां फैक्ट्रियां किद्दां बना ली, उन्हें इन्ने मकान किद्दां बना ले, एडी वड्डी कार उन्हें किवें लै ली। वो दूसरे दे सुख नूं देख देख के ना, दुनियावी है तो दुनियावी सुखी है, उहदे कोल भी नहीं रहना। वो दुनियावी सुखी किसी व्यक्ति नूं देख के ना आप दुखी हुंदा रहिंदा है। यही मनुख दा सब तो वड्डा अज दा दुख है। तो भाई तारू सिंह जी की जिहड़ी सेवा सी ना, वो इन्नी महान सी कि वो केवल सिखां वास्ते नहीं सी, वो हिंदुआं वास्ते मुसलमानां वास्ते बराबर दी सी, क्योंकि साडा धर्म मनुखता दा धर्म है। इस करके भी लोग उन्हां तों सड़दे सी। ते जिहड़ा हरभगत सी वो वैसे ही सिखां दे उस वक्त खिलाफ सी, उन्होंने मौका मिल गया। तो भाई तारू जी की शिकायत हुई, भाई तारू जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहास आप सारे जानते हो अगे। लेकिन इत्थे गल हुण की है, सिर जावे तो जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे। इत्थे आप दो गल्लां नोट करना। पहली गल, अज भी लोग नाइयां दे कोल जांदे ने और आपने कदी देखा कि किसी नाई दे कोल कोई व्यक्ति बैठा होए तड़फ रहा हो, किसी नाई दे कोल बैठे किसी व्यक्ति नूं आपने देखा कदी कि नाई उहदे वाल कट रहा हो और वह बंदा तड़फ रहा हो? ऐसा कदी देखा आपने? आप कदी नहीं देखोगे ऐसा। लेकिन ऐसा किस दे नाल हुंदा है? तड़फन किस दे विच पैदा हुंदी है? मेरे पास एक व्यक्ति आया, मैं जर्मनी दे विच गया सी, एक गुरुद्वारा साहिबान दे विच भाई निरंजन सिंह साहब सन, हैड ग्रंथी उस गुरुद्वारे दे, बड़े गुरसिख सन, नाम बाणी दा सिमरन करने वाले, बड़े अभ्यासी गुरसिख। रात वक्त एक व्यक्ति नूं मेरे को लैके आए, क्लीन शेवन सी, सियासी सिख पर केस कतल करवाए हुए सन। और भाई साहब मैनूं कहण लगे, डॉक्टर साहब ये बंदा अक्सर आके ना सानूं दुखी करता है, तंग करता है। तो तंग करदियां करदियां कहंदा जी मैनूं दसो सिख धर्म च मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए हर रोज़। क्योंकि आप इस तरह के सवालों के ऐसे उलझे हुए हैं कि अगे आप चल ही नहीं रहे। कौम जिहड़ी है ना इत्थे ही भंबल भूसियां च पाई हुई है। मैं उसनूं पूछा कि तू खाना है? कहंदा नहीं मैं नहीं खाता। मैं कहा फिर सवाल क्यों पूछता है? नहीं जी मैं सिख हाँ, पूछना मेरा फर्ज है। नाल दावे नाल सिख भी कह रहा है क्लीन सेवन, मैं सिख हाँ जी, और नहीं दसोगे तुहाडा फर्ज है, प्रचारक हो। मैं कहा फिर तू ये दस कि तू जे नहीं खाता तो क्यों नहीं खाता? कहता जी मैं इस करके नहीं खाता कि जिस वक्त मैं मीट नूं, क्योंकि हुण मीट दी दुकानां ते जगह जगह ने लटके हुए बकरे मुर्गे, आपां भी देखते हैं कि मैं करनी। कहते जिस वक्त मैं उन्होंने मुर्दा जिसम नूं टंगिया होया देखदा ना बकरे दे या मुर्गे दे, तो मैनू उस वक्त एक ख्याल आंदा है कि जिस वक्त इनू कतल किया गया होना यह कितना तड़फिया होना है, और उस दे पिछे जिहड़ी उहदी तड़फन मैनू नजर आती है उस कटे हुए बकरे या मुर्गे दे के। मैं कहता मतलब जे तेनू वो तड़फ नजर आती है तो फिर कुछ तो होंदा होएगा तेरे च। कहना हाँ मेरी आत्मा तड़फदी है। मैं कहता मतलब तेरी आत्मा जिउंदी है। जाहिर तौर पर जी तेरी आत्मा तड़फदी है तो यह मतलब तेरी आत्मा जिउंदी है। तो मैं कहा मैं तो उस आत्मा नूं शाबाशी देंगा जिहड़ी कि एक जानवर नूं तड़फदियां होया देख के तड़फदी है। पर मैं कहा जिहड़ा नाई दे कोल जाके रोज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सिद्धांत कतल करदा है, एक पशु नूं कतल हुंदियां देख के तेरी आत्मा तड़फदी है, चंगी गल है। तो जिहड़ा सतगुर दा सिद्धांत तू रोज जाके नाई दे कोल खुद ब खुद कतल करदा है, उदों तेरी आत्मा नहीं तड़फदी। सतगुर दा सिद्धांत कतल करन लग्या असां जरा भी नहीं तड़फदे। मैं कहा जा पहला सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सिद्धांत कतल करना बंद करके आ, फिर मैं तुहानूं दसांगा किहड़ी चीज खानी जायज है तो किहड़ी नाजायज। जिहड़ी आत्मा सतगुर का सिद्धांत कतल करन लग्या तड़फदी नहीं, उस आत्मा नूं आपां की कहांगे? तो मैं बेनती कर रहा सी कि कदी आपने देखा कि किसी नाई की दुकान से जाके कोई बंदा केस कतल करा लिया हो तड़फ रहा हो? ऐसा कदी नहीं आपने देखा होना। हुण भाई तारू सिंह साहब जी केसां की अरदास करते हैं, सिद्धांतक अरदास है, और हर सिख करता है कि सतगुर पातशाह कृपा करी मेरी सिक्खी केसां स्वासां नाल निभे। यानी कि श्वास मनुख दे शरीर दे जीवित होने का प्रतीक ने।
ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੋਂ ਜਾਂ ਕਰਨੋਂ ਵਰਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਡੈਥ ਬਟ ਏ ਕਾਜ਼ ਮੇਕਸ ਏ ਮੈਨ ਮਾਰਟੀਅਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੈ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, तीन बात निर्णय कर ली जाए, लखयो भली सो धारण की जाए, शरो चलो कलमों को पड़मुख दे शाहू भोगो इन विधि सब सुख, जे हट करो न मानो एहो करा मात कामल कर देवो। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने क्या किया? 3 गल्लां दे विच कोई एक गल निर्णय कर लो, फैसला कर लो। 3 बात निर्णय कर ली जाए, लखयो भली सो धारण की जाए, शरो चलो कलमों को पड़मुख दे शाहू भोगो इन विधि सब सुख, जे हट करो न मानो एहो करामात कामल कर दियो। जे हट कर दियो गल नहीं मनते तो फिर कोई करामात करके दिखा दियो। सतगुर कहने लगे कि तीसरी गल करो, कि तीसरी तो फिर प्राणा की आहूति की गल है। पातशाह ने जवाब दिता, तितिये प्राण हान की बात सो हम सहेंगे अपने घात। जी तीसरी प्राणा की हानि की गल है ना, वो असीं बर्दाश्त करांगे, क्योंकि प्राण जिहड़े ने ना ये दे के असीं अपने गुरु की निगाहां दे विच सुरखरू होना चाहते हैं। इस करके ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ, ਔਰ ਖੋਪਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਜਰਾ ਜੇ ਨਾਈ ਦਾ ਖੁਰਪਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ, ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
क्योंकि सतगुर कहते ने जफरनामे दे विच कि यह चलाक दस्तूर है, खुशिश शहनशाह औरंगजेब के चलाक दस्तूर चाबक रकेब, यह चलाक है राज प्रबंध नूं चलाउण दे विच। ते चलाक जिहड़ा राजा हुंदा ना, वो कदी भी वो कर्म नहीं करेगा जिस कर्म दे कीतिया उहनूं थू थू हो जाए। जे दलीप सिंह नूं उस वक्त कतल कर दिंदे ना अंग्रेज, ते अंग्रेजां दी तोए तोए थू थू होनी सी कि जिन्हां दा सूरज कदी नहीं डुबदा एक बच्चे तो डर गए। यही गल औरंगजेब दे नाल, वो कतल कर ही नहीं सन सकते, पर उन्होंने कतल तो भी वड्डा एक काम किया। जिवें महापुरुष पिंडां वाले क्या करते ना कि शरीरक मौत नूं मैं मौत नहीं बल्कि कॉन्शियस जिहड़ी मेरी आत्मा है उसकी मौत नूं मौत मनदा। उन्होंने ਉਹਦੇ जिसम ਨੂੰ कतल नहीं किया, पर सब तो ਵੱਡਾ काम की किया, ਉਹਦੇ धर्म का कतल कर दिता। दलीप सिंह ਨੂੰ ईसाई बना दिता, ਉਹਦੇ केस कतल कर दिते। तो मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, बड़ी वधिया गल कही, मैं क्या इन्हां ने जिहड़ी मंत्री साहब ने गल कही बहुत अच्छी गल कही है कि बड़े चंगे सन, बड़ी वधिया गल कही कि बड़े चंगे सन जिन्हां ने कतल नहीं किया, जिसमानी तौर पर कतल नहीं किया, पर उसका जिहड़ा असल कतल सी ना वो कर दिता, उसकी आत्मा का कतल। इसे करके फिर वो बाद दे विच सिंह सजिया। लेकिन जिस वक्त अपनी माता दे कोल गए ने महाराजा दलीप सिंह साहब जी, केस कतल ने उस वक्त माणी जिंदा, और शेखूपुरी के किले के जो कलकत्ता पोर्ट के उत्ते महाराजा दलीप सिंह साहब नूं मिलन गई है, अखां तो अन्नी हो चुकी है, रो रो के देख नहीं सकती अपने बच्चे नूं, दलीप सिंह नूं देख नहीं सकती। लेकिन दलीप सिंह जदों झुके ने थले ते माता ने सिर दे उत्ते हथ फेरिया ते देखिया कि केस ही नहीं, ते करंट जिहा वज्जा पिछे हट गई। ये इतिहास है साडा। और कहने लगी बच्चिया साडा राज चला गया, मैनूं कोई अफसोस नहीं होया कि राज ही है, दुनियावी राज है, साडा पाज गया, मैनूं कोई अफसोस नहीं होया कि दुनिया दे विच इदां दी गल्लां हुंदियां रहिंदियां, कदी राज बड़े राज आए, बड़े राज चले जाणगे, पर बेटा अज साडा सिक्खी ताज भी चला गया। क्योंकि जदों मनुख दा सिद्धांत चला गया ना, जिद्दां गोरियां दी इक कहावत है ना, when wealth is gone nothing is gone, when health is gone something is gone, but when character is gone everything is gone। जे बंदे दा सिद्धांत ही चला गया ना तो सब कुछ चला गया। किसी दा धर्म तब्दील कर दो, किसी दे केस, किसी दा सिद्धांत कतल कर दो, पर अफसोस की गल तो है कि असी अज सिद्धांत नूं समझे ही नहीं, इस करके खुद नाई कोल जा रहे हैं और बहाना की मना रहे कि महाराज की मेहर नहीं हुई। और कई बारी तो मैं देखदा कि बड़े बड़े बुजुर्ग, और जे उन्होंने भी गल करो तो वह भी कहते जी हुण तां थोड़े दिन रह गए ने, जे थोड़े दिन रह गए तां की थोड़े दिन भी पागलपुन विच ही बिताने ने। जबकि बाबा कबीर तो कहते हैं एक कड़ी आधी कड़ी, जबकि सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज तो एडा वड्डा हौसला देंदे ने, अज हूं समझ कछु बिगड़ियो नहीं। तो केस कतल करवाउण दे विच उस नूं दर्द नहीं है, जिवें वो कहंदा कि जानवर नूं तड़फदिआं देख मेरी आत्मा तड़फदी है। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी का सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत पक्का ही नहीं हो सकिया आत्मा दे विच, तो जिन्हें मन करके अरदास की ना कि सिक्खी केसां स्वासां नाल निभे, वो अपने केस तां बचा लेगा। भाई तारू सिंह जी कहने लगे कि हो सकता है कि केस तू कतल करें और मैं इन्ना तड़फा कि तड़फन बर्दाश्त ना हो, क्योंकि वो नाल सिद्धांत कतल होएगा। इस करके सिद्धांत नहीं मेरा टुटना चाहिए। शरीर का की है, शरीर तो फिर भी बनसना है। जे अज मैं शरीर नूं बचा भी लिया तो फिर कल, और जे मैं तेरा धर्म कबूल कर भी लिया तो तू मैनू की गारंटी देगा कि तेरे धर्म वाले मरनगे कदी नहीं। तो जिसने सोची ही मौत होवे, जिहड़ा सिद्धांतक तौर पर उस गली विच आया ही तां होवे जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मुरी आओ, जिहड़ा सोच के आया होवे कि पहला मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास, पहला मरण कबूल कर। जिसनु सिद्धांतक तौर पर समझा देता हुए मरण लिखाए मंडल में आए, पहला मरण लिखवाया, पहला मौत लिखवाई। जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए, मलक जो कन्नी सुनिंदा मुंह दिखा लिया है। बाबा फरीद जी दी बाणी, जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए, जिस दिन पैदा होया बच्चा साहे ले लिखाए, लिखे गए उसके श्वास उस दिन ही कि इन्ने श्वास संसार दे विच उसने चुगने ने। इस करके वक्त ते हाकम तेरी मजाल भी की है कि तू सानू मार सके, तू अपना काम कर। हाँ, केसा नू हाथ मैं नहीं लाण दियां, जिसम दा जो तू करना कर लै। हुण सवाल यह है कि जिसने खोपर उतारे कि वह केस नहीं सी उतार सकता, क्योंकि खोपर उतारन लगे तो बन्निया होएगा।
खोपर उतरवाण वाला की केस नहीं सी उतरा सकता, लेकिन ये उस गुरसिख दी बहुत वड्डी परिभाषा है जिसनों आप इतिहास के पन्नियां दे विच पढ़ के देखोगे कि भाई साहब सत्कारयोग तारू सिंह साहब जी 22 दिन तक जीउंदे रहे खोपर उतरवाण तो बाद भी, और एक हिंदू वीर उन्होंने रोज दुध पियाण आया करता सी, एवरी सिंगल डे उन्होंने दुध पियाण आया करता सी। और एक दिन उन्हें सवाल पूछे, उस जगह पर आज लंडा बाजार है लाहौर दे विच, वो कहने लगा तुसी ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था में हो, तुसी ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था दे अपने श्वास जदों चाहो छड़ सकते हो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है। ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक, को बसूदा को खोदे को चंदन लेप। धीरज दे विच रहने वाले ब्रह्म ज्ञानी अपने श्वास जदों मर्जी चढ़ा सकते छड़ सकते। तुसी श्वास काहदे लई शरीर नूं कष्ट दे रहे हो? वो कहने लगे शरीर नूं कष्ट काहदा है? असल दे विच मैं उस कष्ट तो बच गया जिहड़ा कष्ट सिद्धांतक रूप दे विच मैनूं होना सी। और इस जकरिया खान कह दिता सी कि जुत्ती दी नोक ते तेनूं लैके जावांगे, इस करके जिन्नी देर तक ये नहीं मरदा असीं नहीं जाना उन्नी देर तक। और इहदे मरन दे विच अजे कुछ दिन है नहीं। हुण ओहदे श्वास खत्म नहीं कीते, उन्होंने नहीं खत्म किया, इंतजार किया कि ओहदे श्वास कदों। मैनूं एक गल बड़ी चंगी लगदी है, दुनीचंद जी ने लिखी है कि जिस वक्त सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं जमशेद खान जिहड़ा कतल करने वास्ते आया ना, ते सतगुरां दी पावन वक्खी दे विच उसने चाकू मारिया। आप भी पढ़ के देख लेना। तो लिखते हैं कि सतगुरु जी ने बाएं हाथ से घाव पकड़ा, बाएं हाथ नाल अपना घाव जिहड़ा वो पकड़ लिया, दैने हाथ से कटारा निकाला, दैने हाथ से। ते हुण एक हाथ ते घाव ते सीगा ते उन्होंने झटकाया कटारे नूं भी जिहड़ा कटारा सी ना वो बाहर आ जावे ओहदे तो म्यान तो। वो कहंदा पहली बारी झटकाया कटारा बाहर नहीं आया, दूसरी बारी झटकाया फिर कटारा बाहर नहीं आया, तीसरी बारी सतगुरु ने पूरा जोर ला के झटकाया, फिर वो कटारा बाहर आ गया म्यान तो, म्यान भरे जा डिगा ते ओहदे नाल जमशेद खान दा जिहड़ा कतल कर दिता, जिहड़ा पठान सतगुरु नूं कतल करना आया सी। हुण वो जिहड़ी गल लिखदा ना बड़ी कमाल दी लिखदा, कहंदा इतने श्वास अभी उस दुष्ट ने और लेने थे। कहंदा नहीं तो सतगुरु एक बारी कटारे नूं झटका मारन की मजाल के कटारा ना बाहर निकले, लेकिन इतने श्वास उस दुष्ट ने और लेने से, उस दुष्ट ने इन्ने श्वास अजे होर लेने सन, यानी कि उहदे श्वास नहीं कटाए। और फिर देखो गुरु शक्ति, कहंदा हाय अम्मा, पातशाह कहंदे अम्मा नहीं अल्लाह कहो, ये अल्लाह कहने का वक्त है। उहदे श्वास नहीं कटाए केस दे मरण दे विच अजे, क्योंकि 1 जुलाई 1745 नूं वो मरे कि इहदे मरण दे विच अजे दिन है नहीं, इस करके असीं कष्ट सहांगे। लेकिन जिहड़ी गल कह दित्ती निकल गई जुबान तो कि इहनूं नाल लैके जाना, फिर आप इतिहास जाणदे ही हो। आखिरी गल करके मैं आप जी दीआं कॉल्स लै रिहा। केसां दी महत्ता बाइबल दे विच क्लास 12 दे विच एक कहानी आई है, शॉर्ट दे विच मैं आप नूं सुणावांगा कि जिहड़ा सिमसन सी, सिमसन और दलालिल दी कहानी आप भी पढ़ सकते हो क्लास 12 दे विच। सिमसन जिसनों मां दे गर्भ दे विच ही अमृत सिखाया गया सी, जिसनों अंग्रेज नजराइट कहते हैं, इस शब्द बाइबल च लिखिया नजराइट, जिन्होंने बाद दे विच बैप्टाइज असीं कहने हैं, उस वक्त नजराइट सीगा। नजराइट का मतलब यह होंदा है कि जिहड़ा मां दी गर्भ दे विच ही अमृत छके, और परमात्मा ने खुदा ने उन्होंने मां दी गर्भ दे विच ही अमृत छकाया सी। लेकिन मां दी गर्भ च अमृत छकाण दा मतलब सी ये कि उस पासों यह प्रण लिया गया सी कि तू अपनी ताजिंदगी केस नहीं कतल कराएगा, अपने केस कतल नहीं कराएगा। जिस वक्त फिलीपींस दे नाल लड़ाई हुई सिमसन दी, आप अगर रॉयल एल्बर्ट हॉल विच जाओ ना लंडन दे, ते आप सामने जो अंदर प्रवेश ही करोगे तो सिमसन दा बुत लगा हुआ है, उहदे हथ विच ना एक चीज पकड़ी हुई है, आप जाके देखना वो चीज की है। खोते दा जबड़ा उहदे हथ विच पकड़िया हुआ है। निहत्था ही गया सी जंग दे मैदान दे विच, लेकिन एक खोता मरिया पिया सी, उसदा जबड़ा उहदे हथ विच आ गया। उस खोते दे जबड़े दे नाल उसने 1000 तो भी वध फिलीपींस मार दिते। फिलीपींस दे विच हाहाकार मच गई कि यह की हो गया है, साडे कोल इन्ने शस्त्र सन, उहदे कोल कुछ भी नहीं सी। उन्हां दिनां दे विच शाम दे वक्त जंग बंद हो जाया करती सी। अजकल तो शाम दे वक्त जंग वध जाती है ना, लाइट्स बंब्स दे नाल फायरिंग की जाती है कि दुश्मन किते अगे ना आ जाए नेरे का फायदा उठा के, उदों शाम दे वक्त जंग बंद हो जाती सी। सिमसन दी महबूबा सी दलाला फिलीपींस ने अपने खेमे दे विच बुलाई और उन्होंने कहा कि सिमसन दी बहादरी दा राज पता करके आ भी इसकी बहादरी दा राज की है। दलाला सिमसन दे कोल गई, उन्होंने कुछ रिश्वत दी कि कहने लगी तेरी बहादरी दा राज की है। वो कहना मैं दस नहीं सकता। उसने वाइन पियाई जिन्हों के प्रसाद मनते ने अपना,
ਮਦਹੋਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਜੋ ਕੇਸੋਂ ਕੋ ਮਾਨੇ, ਨਾ ਕੇਸੋਂ ਕੋ ਮਾਨੇ तो काहे का पूर्ष, कर्द कटारी का युद्ध मचावत, बर्छी नाल उड़ावत तूर, रंग सुरंग की सार न जाने, क्रिया के कर्म करे चकचूर, तुर्क पठान की ईन न माने, सोई सिंह अकाल का नूर। ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਜੋ ਕੇਸੋਂ ਕਾ ਮਾਨੇ, ਨਾ ਕੇਸੋਂ ਕਾ ਮਾਨੇ तो काहे का पूर। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਦ ਕਟਾਰੀ का युद्ध मचावत, बर्छी नाल उड़ावत तूर, जंग कर ही हो सकता है, यानी कि सच्चा जंग वो कर सकता है। मैं एक बार तिहाड़ जेल दे विच बंद सी, दिल्ली की तिहाड़ जेल दे विच, और मेरे नाल 4 आनंद मार्गी बंद सन। उन्होंने पूरे केसदारी रखे हुए सन, ते जेलर उन्होंने दिनों में ईसाई सी, मैं वो PhD कर रहा सी उन्होंने दिनों दे विच। मैं उसके कोल स्पैशल परमिशन ली कि मैनू नाल दी बैरक दे विच जिहड़े आनंद मार्गी बंद ने उन्होंने मिलन की इजाजत दी जाए। बहुत अच्छा सी क्रिश्चन, उन्हें इजाजत दे दी। तो मैं उन्होंने पूछा कि तुसी साबत सूरत हो, असी भी साबत सूरत हाँ। मैनू कहंदा जी असी डैगर भी रखते हैं जिस तरह तुसी कृपान रखते हो। मैं क्या क्यों? क्योंकि कहंदा जिसने सच्चे पासे बल, उन्होंने उस वक्त रेलवे मिनिस्टर मिश्रा नूं उड़ाया सी बंब दे नाल, आपनूं ध्यान होएगा रेलवे मिनिस्टर हुंदा सी मिश्रा। वो कहंदा कि जिसने सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जंग करनी होवे ना, उसकी साबत सूरत होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि वो अपनी साबत सूरत के नाल ही, अपनी सूरत के नाल ही परमात्मा दे दीदार कर सकता है, अन्यथा कोई रस्ता नहीं। और परमात्मा जिहड़ा वो शक्ति का प्रतीक है। इसे करके आप अज के विद्यार्थियों को यही गल समझाने ना, असी GCSE दे विच एक इंट्रोड्यूस की है जिथे अकैडमी में पढ़ाना, सिंबोलिक मीनिंग्स। क्योंकि अज का बच्चा सवाल पूछता है कि कृपानन का मतलब की है, जबकि अज का जमाना टैंकों का, बंबों का, तोपों का, मिजाइलों का है। 50-50 हज़ार मील, 5-5 हज़ार मील के उत्ते तुसीं घरों बैठे वार कर सकते हो, फिर कृपान का अर्थ की रह जाता है? सिंबोलिक मतलब शक्ति का प्रतीक कृपान। जिहड़ी चौपाई साहब आप पढ़ते हैं ना, सतगुरु कहते सिरी अस धुज तब सरनी परे, सिरी अस कृपान नूं कहा जाता, ध्वज झंडे नूं, कि परमात्मा का जिहड़ा झंडा उहदे विच भी कृपान का निशान है, क्योंकि कृपान शक्ति का प्रतीक है। तो मैनूं कहण लगे, कहंदे शक्ति हो जावे ये कोई वड्डी गल नहीं है, वड्डी गल यह है कि शक्ति का इस्तेमाल कित्थे करना है। जिन्नी देर तक मनुख दे कोल शक्ति का इस्तेमाल नहीं है ना, इस्तेमाल करने की जांच नहीं है, उन्नी देर तक शक्ति का कोई फायदा नहीं। क्योंकि शक्ति हासिल करने वाला बंदा तो रेपिस्ट भी हो सकता है, डाकू भी बन सकता, डाकुओं कोल भी शक्ति होंदी है, रेपिस्ट कोल भी शक्ति है, अतवादी कोल भी शक्ति है, माओवादी कोल भी शक्ति है, उन्होंने कोल हथियारों की शक्ति, लेकिन गलत इस्तेमाल हो रहा है ना शक्तियों का। आप देख रहे हो कि दुनिया के शस्त्रों का, हथियारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसे करके हाहाकार दुनिया के मची हुई है। ਜਿਹੜਾ अपने रूप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अकाल पुरख का रूप नहीं देख सकता, और अकाल पुरख का रूप देखने का तरीका ही कोई है, साबत सूरत। क्योंकि ਜਿਹੜੇ रूप च अकाल पुरख सानू देखना चाहता है, उस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अकाल पुरख ਨੂੰ देखिए। इस करके कहता ਅਸੀਂ डैगर भी लगाने। तो मैंने फिर भाई साहब भाई गुरदास दूजे की गल याद आई कि सिंह सोई जो केसों को माने, ना केसों को माने तो काहे का पूर, कर्द कटारी का युद्ध मचावत, बर्छी नाल उड़ावत तूर, रंग सुरंग की सार न जाने, क्रिया के कर्म करे चकचूर। वो कोई क्रिया कर्म नहीं मानता। जिदा आप अज का संग्राम का महीना मना रहे हैं, उदों भी मैं आप जी के चरणों में बेनती की थी कि किरत कर्म के विछड़े, आप किसी कर्म कांड नहीं मनना। क्रिया के कर्म करे चकचूर, तुर्क पठान की ना माने, सोई सिंह अकाल का नूर। यही गल उन्होंने कही दुलाला नूं कि अगर मेरे केस कतल कर दो तो मैं जंग हार जाऊंगा। दूसरे दिन दुलाला ने फिलीपींस नूं राज दस दिता। वो कहने लगे इन्नी की रिश्वत तेन होर देने आ, तो जा और वो केस कतल कर दे। इतिहास है, आप पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो। दूसरे दिन दुलाला गई, मदहोश कर दिता, वाइन पिया के सिमसन नूं और वो केस कतल कर देते। अगले दिन वो जंग हार गया। भाई तारू जी केसां नूं हथ नहीं लगन दे रहे और जिस्म खत्म हो गया तकी, लेकिन वो जंग जित गए। ये जंग आत्मक है, ये सिक्खी की जंग है। भाई साहब भाई तारू सिंह साहब जी का पावन पवित्र शहादत दिहाड़ा आप जी को बहुत बहुत मुबारक।